it has led to failure in effective regulation and supervision of legal education in Pakistan. The 18th Amendment to the Constitution of Pakistan has added further complexity to the regulation of legal education. After the passage of 18th Amendment, higher education has devolved to the provinces. However, only the government of Punjab initially formed this Provincial Higher Education Commission, which is Punjab Higher Education Commission. Later on, Sindh also formulated one higher commission known as Sindh Higher Education Commission, whereas the other provinces, Balochistan and Pakhtunkhwa, they have not formed any provincial higher education commissions. They are in conflict with each other, and in fact, there is a judgment. There was a judgment from Sindh High Court, and there was a judgment from Lahore High Court, and now the matter is pending before the August Supreme Court of Pakistan. And two of the former Higher Education Commission chairmen are the petitioners, including Dr. Ataur Rahman. And this matter is being heard and is pending since a very long time. Still, there is a lot of conflict between the provincial and the higher federal education commission. And this has to be resolved at some point of time. At present, 28 universities in Pakistan have been granted permission by the Pakistan Bar Council to award degrees in law. It is estimated that approximately a further 74 colleges are affiliated with 16 universities out of 28 universities which have been granted permissions. Legal education in Pakistan is imparted in three different types of legal programs. One, 3-year LLB program pursuant to the 215 rules. The 3-year LLB program will be discontinued after December 2018. In fact, we have admitted them for the last time now, no more 3-year program in Pakistan. There is a 5-year LLB program and the University of London external LLB degree, which is being imparted. And the 3-year LLB program is postgraduate degree, which until the promulgation of 215 rules was governed by the 1978 rules. Under the 215 rules, the 3-year LLB program was to be discontinued, which has been now discontinued. And the Pakistan Bar Council has laid down the framework for 5-year LLB program and also provides for the regulation of legal education in Pakistan by foreign universities, imparting international, external, distinct legal programs. And under the 3-year program, merit is the prescribed requirement for admission in this program. Under the 1978 rules, required that one has to be a graduate and to get admission. There was no requirement to pass an entrance exam for admission, and only a handful of law colleges offering 3-year LLB program, like the Indus College of Law, they have been holding entrance exams. Law students were required to study approximately 33 different subjects, which have been fixed by the Pakistan Bar Council. During the 3 years of the program, no study materials or minimum standards have been prescribed under the 1978 rules. One of the major changes in the 215 rules is the substitution of 3-year LLB program with 5-year LLB program, the purpose of which is to steer students into acquiring more comprehensive legal education. This will in fact cause a phasing out of 3-year LLB program and put in place only 5-year LLB program, which has been designed and approved with the intent to improve legal education in Pakistan. Moreover, Pakistan Bar Council, by virtue of 215 rules, will be regulating the LLB program. The 5-year LLB program is an academic and professional undergraduate degree, which follows the curriculum of law for 5-year LLB program, the curriculum approved by HEC at the federal level and endorsed by the Pakistan Bar Council. The curriculum, which was framed in June 2011, National Law University project. I was a part of this project also, which was adopted by law colleges in Punjab University, LUMS, BZ University, then Hamdard University and Baria University. Though feedback was obtained from legal academies and faculty members from all provinces in Pakistan, the provincial HEC centers do not appear to have practically contributed to the curriculum. The curriculum stipulates the scheme of studies for 5-year LLB program, where law study eight courses, 24 credit hours of journal and foundation during their first 2 years. And for the most part,
study the prescribed law courses in the final 3 years. Law students thereunder are required to take 10 compulsory courses, 28 credit hours, and 38 discipline-specific major courses, 114 credit hours, including research and internship. Law students for 5-year LLB program are required to complete 10 to 12 weeks of internship after the end of the 4th year and submit a research project, write a dissertation during 9th semester in the program. The curriculum also provides recommended textbooks and other reading materials. The course contents have been prescribed therein and suggest the learning outcome of the 5-year LLB program. The learning objectives finalized for the 5-year LLB program include inculcation in students of broad understanding of the social, political, economic context within which legal system operate, imparting onto the students knowledge and understanding of legal principles, and developing the intellectual and practical skills necessary for the employment in the legal and other professions. Since promulgation of 215 rules, in addition to curriculum, the 5-year LLB program is subject to compliance with the requirements laid down in 215 rules. Students who pass the higher secondary education, now this is the criteria, this is the threshold set up for entering into law school. Either you do your A-levels or you do your secondary education, there you are admitted, and prescribed is the merit. Nowhere merit is mentioned, and it is nowhere explained what merit would be. However, there continues to be requirement for education framework to pass an entrance exam for admission to law college. Hence, there means no access to the applicant students' potential to successfully acquire knowledge and lawyering skills, and law colleges will continue to impart legal education to students with different capacities, including those who lack the requisite intelligence, language skills, IQ, analytical skills, or aptitude necessary for law school. The University of London program, which is an undergraduate degree, is offered by independent teaching institutions throughout the country, which are recognized by the University of London. Course material is made available for registered students for self-directed study, and the teaching institutions support the students by conducting lectures on different subjects of the degree. The study materials are made available to students that are designed to guide them through the syllabus for each module and direct the reading of the prescribed textbooks and study packs and online library resources. Since the promulgation of 2015 rules, the institution Pakistan Teaching University of London program now have to obtain a no objection certificate from Pakistan Bar Council before 19th May 2016 are subject to compliance with the 2015 rules. In the event of non-compliance with these rules, an institution providing the University of London program shall be recommended by Pakistan Bar Council to be de-affiliated, de-recognized by the concerned foreign university, and the Pakistan Bar Council shall refrain from issuing lessons to the practice of law. The Pakistan Bar Council, as the regulator of legal education in recent years, has undertaken various initiatives to identify and address the weaknesses and improve legal education in Pakistan. In the light of decline in legal education, the Pakistan Bar Council sought the support of Supreme Court of Pakistan in the enforcement of affiliation rules in Pakistan Bar Council versus Federal Government of Pakistan, PLD 2007, Supreme Court 394. The reasons identified for this decline by the Pakistan Bar Council included the increased number of law colleges, lack of adequate facilities, absence of quality faculty, and absence of regulatory authority to ensure a certain qualitative standard. The Supreme Court in this case also identified the following reasons for the decline in legal education. Number one, mushroom growth of substantial law colleges lacking in infrastructural facilities and quality education. Two, absence of eligibility criteria for admission. Three, poor quality of faculty teaching law who lack time, commitment, at times requisite qualification to teach law. Four, inadequate resources, facilities, and infrastructure of law colleges. Five, preference given to commercial consideration of legal education by law colleges instead of preference to academics. And six, lip service given to the course
courses taught in law colleges, and absence of in-depth study or analysis of the subjects. Then lack of attention given to moral issues and professional ethics and substandard administration of examination by law colleges. Members of the National Task Force formed by Supreme Court of Pakistan, of which I also was a member, and it was headed by Justice Nasir Aslam Zahid, Mansoor Ali Shah, then he was a lawyer, and Humayun Hassan, he was there. This committee started working and deliberating upon proposing additional measures to further improve and support the 215 rules, which inter alia includes strengthening inspection teams to monitor and evaluate the compliance of 2015 rules, and eligibility criteria for enrollment as an advocate by graduates of University of London LLB, increasing the minimum number of enrolled law students in law colleges, and mandating law colleges to submit the attendance record of law students on monthly basis. Despite a number of steps, the major change could not take place. Resultantly, there were programs issued for 5 years by provincial bars, and Punjab Bar Council in particular. They introduced a concept of entrance test to the law schools and entrance to the bar, and 5-year law program. This was stopped by way of a judgment by the Lahore High Court. This judgment was challenged by Pakistan Bar Council before the August Supreme Court of Pakistan. And there were a number of other petitions. Some of them were for implementing them as a party to this list. And Supreme Court, in a comprehensive manner, under Article 184(3), Bench 1 of the Supreme Court, headed by Justice Mia Saqib Nisar, and Justice Ijazul Ahsan and Justice Umar Ata Bandial were the members. They formed a structural reform committee, and they formed 5 commissions, 4 for each province, and a commission for the Islamabad Capital Territory also. These commissions were reported to the Structural Reform Committee, and as a result of detailed deliberations on this and inspecting a number of law colleges, they recommended a number of measures for improvement of legal education. I had the honor of being member of the Structural Reform Committee and amicus curiae in this case. And this judgment, which has certain salient features, this judgment starts with the fact that there was a judgment by the Supreme Court in PLD, reported as PLD 2007 Supreme Court, and it settled once for all that regulators for legal education in Pakistan are 2. One, Pakistan Bar Council, and other, the HEC. And the things which were pointed out as lacunas in the legal education, the affiliation rules of law colleges, were not to be acted upon as such. Resultantly, a detailed exercise which took place as a result of these commissions and Structural Reform Committee deliberations. The court declared that number 1, it restored the law GAT. Restoration of bar entrance examination was restored, and the duty to perform and duty to conduct this exam was given to HECP, which is now holding this entrance exam. Then they introduced test to entry to law colleges, LAT, on the basis of certain subjects. And these were 100 marks. This is taking place. And some of this is subjective part, like you have to give personal statement, and then you have to attempt one essay also. The rest of them are MCQs. Then this, in this judgment says there are specification of affiliating universities and their territorial jurisdiction was prescribed, where the functioning of these universities will take place, how they will affiliate law colleges. 11 universities have been given the status of territorial jurisdiction for different affiliation matters. Then ban against conducting LLM and PhD by classes by all those universities and colleges was put, because they were not offering LLB degrees. So those institutions which were not offering basic LLB degree could not impart LLM or hold PhD programs. Then there was a limit prescribed on
how many students you could take in LLM and PhD as per the HECP rules. This was an embargo created again. And then designing of curriculum of 5-year program for annual semester was given to HECP. We went to HECP under the instruction of the government, and Professor Ahmad Ali, he will be joining us now. He is head of HECP there, and he has been part of Pakistan Bar Council committees and in this structural reform committee. In fact, he was head of the commission for Pakhtunkhwa. He took us there, and they promised that they will be reviewing this 5-year program, but this has not taken place. This was supposed to take place in March last year. It never happened, and more than 1 year has passed. This 5-year program curriculum is yet to be, reviewed because it is not up to the mark. Then qualification of faculty, permanent and visiting at law colleges was fixed, and then again on the recommendation, this was that to the effect that the dean, law faculty and head of law department and principal of law college shall be PhD in law with 8 years law teaching experience, or practicing experience in high court, or master's degree in law with 15 years law teaching experience, practice experience in high court, or retired judge of the Supreme Court or High Court, or a retired district and session judge having 5 years judicial service to his credit. So we will deliberate on that because this was not initially in the HEC rules or Pakistan Bar Council rules. Hereby, certain people who have long standing as teachers, maybe they are teaching for the last 40 years, they are debarred from becoming head of the department, whereas by virtue of being ex-High Court or Supreme Court judge, or even a district and session judge with 5 years experience, maybe you don't have any academic qualification or no teaching experience that way, and you can be a dean. And then at least 5 permanent faculty members have to be there, and the ratio fixed in this case, and I say it with full force now, that it is written in the judgment that the standard ratio of permanent visiting faculty shall be followed to meet the needs up to 100 students. So the ratio is 5 permanent faculty members to 100 students. Now, what is practically being done? They have just put in 100 students for this criteria for everyone. To me, there is a lot of reservation by so many law colleges, and I also support the idea that 100 students law college is not viable anymore, because you cannot run a law college with 100 students. Resultantly, fee has increased many times, and this is discouragement for the ordinary poor people of Pakistan to get legal education. This has become in the hands of affluent class and for rich people only. So this criteria was that in case a college has the requirement, has met the requirement that they have more faculty members, 200 students, they could have more seats. You cannot generalize that this is in violation of this judgment. Affiliating universities were to constitute separate affiliating committees for law colleges with their territorial jurisdiction. This is another area which is very troublesome, because I see like big public universities like Punjab University, they are affiliating and taking care of like 90 programs. Though they don't have the capacity, they don't have the manpower to man these committees. Gone are the days when we had top class lawyers and top class people from the academics like Justice Amir Raza Khan, who were heading these committees. The people who don't have the qualification, this is the problem, that these committees should be headed by a very competent people, because they are the affiliating committees. They are to report annually also, and initial affiliation is also to be granted by them. Then ban on 3-year LLB program has been done, and this is again something which is to be pondered upon, because unless you have in the first 2 years that quality of initial education which we used to have, we had the nursery in the shape of top class educational institution like Government College, Connect College. You had the capacity to provide us with good nursery.
So Pakistan, by way of this, I think has become the only country in the world where you only have one 5-year program, and rest of the world they have either they have 5-year program, 3-year program, and 4-year program. In some countries, all three of them. In some countries, two of them. But Pakistan has now become the only country which has only 5-year law program. Then again, in 5-year program there is a distinction. The public sector universities, they are running law program on semester basis, and the affiliated law schools who are running this 5-year program, this is on annual basis. So they are not given the leverage, and they are not given the control to hold it on semester system again. So this is something to be reviewed now. There can be only one kind of criteria for all students. Then there was a ban put on the evening classes. So this is again a ban which has started telling on people. I can point out one law college which is known as SM Law College in Karachi. They never ever had morning classes. One of the best institution of the country. They have produced many top class lawyers and judges, and they never had this morning classes. So I think you can put embargo on entrance to the bar, which should be very strict one. You are not, it's not very easy to be called to the bar in New York or in England. You can put a ban on, put a standard at a very high level over there. But to learn and have education is a fundamental right as per constitution. We have gone a little too far, and this has again, squeezed some law colleges. They cannot hold evening classes, and some of the people who used to have their education improved in evening classes, there is a halt put on, and this needs to be reconsidered again. And then there was a special equivalence exam prescribed for the foreign universities. In fact, after a long deliberations, we devised this program. Since the foreign university people, the students, they don't have clue to this procedural laws. So we recommended we should have one equivalence exam for these students. But how we are implementing now, HEC is holding two exams, two similar exams. One for the students who are entering to the profession, irrespective of the fact whether they come from foreign university or they come from local university. But for foreign universities, they are holding two exams. Doesn't make any fun. This was the equivalence exam which has not been acted upon, and the institutions were to offer that. Then bar vocational course, as a necessary evil, they accepted that there will be a 2 weeks bar vocational program, advocacy skills training, and this was to be imparted by provincial bar associations with the help of the judicial academies. They were supposed to have their own legal academies, which have never ever come into play. And this is a real hardship for the people, because you cannot do everything. People who are elected, they are saying that they are holding some kind of bar vocational courses. They are not qualified for that, and this is a continuous effort. We need to outsource it to the people who know how to train people, and consistently they will train the trainers, and we have to do it at the divisional levels also. So this is not being implemented. Serious reservations on that. And then it was recommended that the federal and provincial budgets will have allocation of funds for the for the Pakistan Bar Council. And there was a recommendation that we will have a full-fledged directorate on legal education at the Pakistan Bar Council level, with manned by HEC and other people on the basis of academics. They should have a representation for the public sector universities, private sector universities, affiliated law colleges, and of course, Pakistan Bar Council, they should also be there. But there should be a body to monitor the legal education, and we cannot go back to the Supreme Court all the time. And we cannot sit on it, because people in the Bar Council, of which I have been member also, their consideration is to fetch votes. And look at Punjab Bar Council, what they have done with the entrance exam. We put in that 70% passing marks for entering to the bar as a rule under the this effort, which was a Herculean effort. And what they have done, they have said just 40% marks. They just want to contest elections. They want to have their voters, and 40% is it is making joke of the original system. This has again been done. And then
I tell you, provincial bars, they can help the Pakistan Bar Council, but this is settled once for all that there are only two regulators, Pakistan Bar Council and HEC. Provincial bars have nothing to do with that. They can only help, in conducting exams and of course inducting people also. But as far as framing of policies is concerned, monitoring of colleges is concerned, affiliation of colleges is concerned, uh, uh, acting upon these rules is concerned, they have nothing to do with it. So with all this, I say that even it was recommended that handsome salary should be given to the people who are coming and teaching. Amjad Hussain Sahab is there. It is very difficult to attract good people to leave their other assignments aside and leave profession and be full-time teachers on these meager kind of salaries and perks that you are giving to them. This is not so. You compare it with other disciplines. Law is a very high profile, competitive profession that we have. Why not fix a criteria to give handsome salary to these employees who are who are living everything. They have a passion for teaching. People have a passion for teaching, and that's why they come into this profession. Otherwise, there is no money, but still they must run their kitchens. For that, their salaries should be increased. And then immediate closing of so many unauthorized colleges, they said, who will bell the cat? On behalf of the Punjab Bar Council, we took up this lead also, and we have done away with many colleges, like to be precise, like 89 colleges around Pakistan have been closed, and disaffiliation has taken place. And then there is a task of granting time to some universities where there are and colleges where there are minor discrepancies. They have to fulfill that. I think this is not being done in a proper manner and a fair manner again. And these are the kind of difficulties we are confronted with right now. And with this, I open up this house for discussion. There are many competent people just wanted to, by way of prelude, to tell you where we have been, where do we stand, where we are to move forward. Presently, there is much to be desired for legal education. Legal education is not in a good shape, and we have ended up being on the basis of, though there have been some corrective measures, I don't say there have been some very good efforts like entrance to the law schools, entrance to the bar, recommendation of bar vocational courses, and development of curriculum and recommendations like that, and qualifications for the faculty. I do agree to that. But still, there are a lot of lacunas. There are some misinterpretations with regard to this judgment. And after all, we have to take the burden on ourselves and develop a directorate on permanent basis. Let's hear you all, because end of the day we will be compiling in black and white these recommendations and going to all the concerned authorities and make our presence felt. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Zafar Iqbal Kalanuri, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom regarding legal education in Pakistan. Now we will take a start regarding our session and panel discussion. So move towards, once again, you are the moderator of that panel. And can you listen me, sir? Yes, I can hear you. Yeah. Sir, over to you, sir. Once again, sir. We start with the public sector university, and we start with Amjad Hussain Saab. Amjad Hussain Saab, you are hearing me. We were together on the committee. What you have to say with regard to legal education? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी, हम सुन सकते हैं जी, आप बोलें। Yes sir, we can listen you. आपको सुन सकते हैं सर। बोलें जी आप। सर बहुत शुक्रिया सर। जफर साहब ने माशाल्लाह काफ़ी देर बड़ी तफसील से इन्होंने बताया, और कोई चीज़ रह नहीं गई। जो डेवलपमेंट हुई, जो पस मंज़र था, जो डेवलपमेंट हम चाहते थे, जो हमारी ख्वाहिशात थी, हम चाहते थे लीगल एजुकेशन जो है वो प्रमोट हो, अपडेट हो, और इसकी कुछ वर्थ बने, और जो शिकायत हैं, कॉमनली बहुत सी शिकायत हैं, उनको दूर किया जाए। इसी सिलसिले में हम इकट्ठे हुए। हमने, जैसे कमेटी का बता रहे थे सर,
और काफ़ी वहाँ हम तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा हमें हुआ हम इकट्ठे रहे, और जो चीज़ें हम करते रहे साल में, अभी सर ने बड़ी ही मुख्तसर टाइम में उसका खुलासा पेश किया है। अब सवाल ये है कि ये एक तरह की एफर्ट तो हुई, उसके बाद जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं ख़ास तौर पे, उन्होंने फिर इसके ऊपर कितना अमल दरामद किया, ये मेरा ख़्याल है बड़ा कंसर्न क्वेश्चन होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है उस तरह हम काम नहीं कर पाए, जिस तरह हमें करना चाहिए था, बीच में फिर रुकावटें आईं, और किसी हद तक मैं समझता हूँ शुरुआत हो चुकी है लीगल एजुकेशन की बेहतरी की तरफ। हमने कुछ जैसे लैट का टेस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, उससे ये रिवाज पड़ गया कि अब लोग लॉ में एडमिशन से पहले कुछ पढ़ेंगे, कुछ तैयारी करके आएंगे, कुछ अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, एक माइंडसेट होगा, एक रुझान होगा। यही होगा कि चलते फिरते चलो आपने एलएलबी में दाखिला ले लिया और आपने वकील बन के निकलना है, तो थोड़ा बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे, बेहतरी इसके अंदर आएगी। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो दूसरी साइड पे जो जहाँ काम होना चाहिए था, जो दूसरी साइड है, वो हमारी बार काउंसिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा जोर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे दिया गया है कि यही सब कुछ करें। जो हमारा लाइसेंसिंग सिस्टम है, जिसकी तरफ अभी ज़फ़र साहब इशारा कर रहे थे, हमने उस तरफ हमें कोई तवज्जो नहीं की। उसकी वजूहात भी हम लोग समझते हैं। मेरा ख़्याल है कि उसको भी इक्वली हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, जो उसका तरीक़ेकार है, उसको हमें काफ़ी हद तक हमें बदलना होगा। और अभी जैसे था कि हमने मार्क्स को और नीचे लेके आए, पासिंग मार्क्स को टेस्ट के लिए, फिर उसके बाद सुना है अब उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो ये हम खुद ज़ुल्म कर रहे हैं इस प्रोफ़ेशन के साथ। तो लीगल एजुकेशन की जो जो एफ़र्ट जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो रही है, ये उसके ऊपर सारा फिर पानी फेरने के बराबर है, कि उसके बाद हर बंदे को मौका मिलेगा। कम से कम क्वालिटी को हम इम्प्रूव अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम आगे भी उसको कंटिन्यू करें, मेंटेन करें। तो मेरा ख़्याल है बार काउंसिल को चाहिए कि इस साइड पे तवज्जो दें, इसको सीरियस लें, इसको सिर्फ़ वोट की खातिर इसको कुर्बान ना कर दें कि लीगल एजुकेशन का कबाड़ा हो जाए। हमें ये आज और कल और आने वाले वक़्त में हमें ओन करना होगा, और हमें इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल करनी होगी। मेरा ख्याल है कि जितना भी इस तरह का स्टफ अब प्रैक्टिस में आपको नजर आता है, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बार कौंसल के ऊपर आती है। मैंने ये तजवीज दी थी, जफर साहब को याद होगा, कि इस टेस्ट को कम से कम इतना उसी लेवल का किया जाए, जैसे हम पब्लिक सर्विस कमीशन में हम जब इंडक्शन करते हैं, तो जुडिशियल ऑफिसर के लिए हम करते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो उस लेवल का एटलीस्ट एग्जाम हो, उस एग्जाम को पास करने के बाद फिर आप उनको लोगों को लाइसेंस दें। लेकिन जैसे है कि आपको पता है कि जिसने एलएलबी कर ली है, उसको लाइसेंस तो 100% मिलना है, हर सूरत में मिलना है, और वो ले लेते हैं लाइसेंस। तो इस तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। बाकी जैसे बजट की सर ने बताया कि बजट की एलोकेशन की भी हमने प्रपोजल दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स भी किया। मेरा ख्याल उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ, और सैलरी पैकेजेस को भी अभी तक वो एचईसी की जिम्मेदारी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि वो उसको रेगुलेट करेंगे, वहाँ भी खामोशी है। और काफी अरसे से टीचर्स जो हैं, जो लॉ के रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो उसको उनका ख्वाब पूरा हो, वो जो डिसीजन है उसका ये हिस्सा भी इम्प्लीमेंट हो, सैलरी पैकेजेस भी थोड़ा बेहतर हो, और बाकी चीजें थोड़ी बहुत वो तो चलती रहेंगी। जैसे सिलेबस की बात है, सिलेबस के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हम डेवलप करेंगे इसको, और उसमें भी हम सबको मिलकर काम करना होगा। जो लास्ट टाइम जो हमने सिलेबस डिजाइन किया 5 साल जो एनुअल सिस्टम के लिए, वो शायद थोड़ा जल्दी में किया गया, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है लोगों की, और उसको भी हमें दोबारा अपडेट करना चाहिए। उसके लिए हम सबको मिलकर करना होगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरा जब इंटरेक्शन होता है कई कई पब्लिक सेक्टर में लोगों के साथ, तो बहुत बड़ा एतराज ये होता है कि ये जो रूल्स मेकिंग होती है, और इसके ऊपर जो है वो फैकल्टी मेंबर्स को, यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। और ये जो 2015 के रूल्स जो बनाए गए थे, इसके अंदर भी फैकल्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसलिए काफी सारे एतराज़ा लोग करते हैं कि ये रूल वो है जिसमें हमारी नुमाइंदगी नहीं हुई, इसलिए उसके अंदर जो कमी बेशी नजर आती है वो दूर होनी चाहिए। जी, मेरा ख्याल है ये गुजारिशात है कुछ। अगर मजीद कोई सवाल हो तो मेरा ख्याल है फिर हम आगे चलें। जी जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपको सुन पा रहे हैं, बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं सर। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था, अगर हम कोई इश्यूज हैं, क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर फिर हम फर्दर बात करें, क्योंकि जफर साहब ने बहुत डिटेल से जी बिल्कुल सर। हमें तकरीबन बता दी हैं चीजें। जी अमजद साहब आपके पास फिर वापस आते हैं, इतनी देर हम दूसरों को भी सुनते हैं क्या कहते हैं। राणा साहब,
ये राणा साहब का माइक अनम्यूट करेंगे। जी सर, तमाम जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राणा साहब का माइक अनम्यूट कर दिया है। राणा अली अकबर राणा साहब, साहब को रिक्वेस्ट कही है। राणा जी साहब आप, जरा काइंडली आपको रिक्वेस्ट आवाज आई आ है, रही है? आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करेंगे। राणा अली अकबर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? आपको हम देख पा रहे हैं। राणा साहब, राणा साहब आपको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। राणा साहब आप फरमाइएगा, आप प्रिंसिपल हैं माशाल्लाह टॉपर्स लॉ कॉलेज के, आप इस बारे में क्या कहते हैं, जरा ओवर टू यू बताइए। बुखारी साहब, राणा साहब से राब्ता नहीं हो रहा। जी सर, वो कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं सर उसको फिक्स करते हैं हम। आप आप आपदा से, अमजद साहब काइंडली आप जी, आप मैं मैडम आपदा से भी बात कर आपदा अगर लाइन पे है तो उनसे बात करा दें। आपदा है? जी, मेरा ख्याल है इनके माइक्स के साथ कोई टेक्निकल इशू है, तो आप बात करें, मैं 2 मिनट में वो फिक्स कर देता हूँ। वो हमने तो रिक्वेस्ट उनको भेजी है अनम्यूट करने की, उनकी तरफ से अनम्यूट नहीं हो पा रहा। तो आप काइंडली डिस्कशन को जारी रखें, मैं उनको साथ जैसे शामिल होते हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ इन टच होता हूँ। बुखारी साहब, कोई और है लाइन पे? आपदा है तो उनसे बात करा दें। हेलो जी बुखारी साहब, सर, आप, आपको मैं सुन पा रहा हूँ। जी आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी, कोई और लाइन पे है? अमजद साहब ने कहा है कि हम बाद में फिर शामिल होंगे, बात करेंगे। हम सुनते हैं ना। आप बताएं, आपदा है यहाँ पे कोई और है? जो कोई है जिससे आप इन टच हैं उसके बारे जी में। सर, वो गेस्ट स्पीकर्स में एक्चुअली आपदा और राना अली साहब को दोनों को हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप उतनी देर इसके हवाले से डिस्कशन जारी रखें, क्योंकि ये फेसबुक लाइव पे चल रहा है। जी तो जी आप अपनी डिस्कशन इस हवाले से जारी रखें, मैं सिर्फ 2 मिनट में जी इसको फिक्स करके आपसे दोबारा राब्ते में आता हूँ। जी, मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे कि अमजद साहब ने कहा, बहुत सारी चीजें हमने पॉइंट आउट की हैं, उनमें कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हुई हैं। जो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं उनमें से एक तो ये हुआ कि अब लॉ स्कूल के अंदर जैसे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की अथॉरिटीज जो हैं वो उनका एक एग्जाम लेते हैं, और वो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम लेते हैं, हेल्थ साइंसेज वाले। एंट्रेंस नहीं हो सकती। इस तरह हमारे लॉ स्कूल के अंदर भी आप जब तक ये एग्जाम पास ना करें उसकी एंट्रेंस नहीं हो सकती। इसकी खूबी ये है कि ये क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम हो रहा है, और इसके अंदर से सियासत का अमल दखल जो है वो नहीं है, क्योंकि HEC ले रही है और ये बिल्कुल मुफ्त ले रही है, और हर जगह पे ये एग्जाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे होता है। ये हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि कम से कम कुछ एप्टीट्यूड वगैरह का टेस्ट हो, कि बच्चों का पता तो चले कि वो आना भी चाहते हैं लॉ में तो किस वजह से आना चाहते हैं। तो उसमें हम पर्सनल स्टेटमेंट भी ले रहे हैं उनसे, ऐसे भी लिखवाते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो बार का एग्जाम है ये भी एक अच्छी शुरुआत है, कि बिल्कुल ही बार के अंदर किसी किस्म का एग्जाम जो पहले होता था उसमें तो नकल वकल चलती थी, ये भी क्योंकि HEC एग्जाम ले रहा है विद वन रिजर्वेशन के, बाकी सूबों के अंदर ये मसला नहीं आया। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से एग्जाम हो रहा था। जो इन्होंने रेशो कम कर दिया कि 40% पास मार्क्स है, उस पर मेरी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है। तो 40% तो कोई अच्छी रेशो ही नहीं है। आपने उसको 70% से एकदम ड्रॉप करके 40% कर दिया ताकि सब लोग पास हो जाए। तो इसको इतना आसान बना देना जो है ये कोई मुनासिब नहीं है। तीसरा, ये जो बार वोकेशनल कोर्स की हम बात कर रहे थे, जब तक आप वो स्किल्स नहीं सीखते लॉयरिंग की तो आपको बार में नहीं लाते। मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो सबसे अच्छे लॉयर और फादर ऑफ द नेशन हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हुए हैं, वो बेसिकली तो ही वाज जस्ट अ मैट्रिकुलेट, और उसके बाद ही वाज कॉल्ड टू द बार ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। तो आपको अभी भी इंग्लैंड वगैरह में तो आपने लॉ की बेसिक डिग्री ना ली हो तो उसके बावजूद भी आप बैरिस्टर बन सकते हो। एक ये भी रूट है, क्योंकि ये आपको स्किल्स सीखनी होती है, और ये स्किल्स सिखाने के लिए बार वोकेशनल कोर्स हम यहाँ पे लाए, और वो मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, वो अभी मजाक है। तो जो
एकेडमिक साइड से जो काबिल लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग देने आती है उनको आउटसोर्स करके यहाँ पे देना चाहिए ये मसला, ताकि ये मुसलसल ये इम्तिहान हो और इसमें बेहतरी हो। मेरे ख्याल है राना अली साहब, आप हम सुन सकते हैं आपको, प्लीज आप बात कीजिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, प्लीज फरमाइए सर। अच्छा सर, मैं इसमें बाकी आपकी मौजूदगी में कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कुछ गुजारिशात जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। इसमें सर ये है कि जो जिसकी आपकी काविशों की वजह से जो जजमेंट आई थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस में जिस तरह जनाब अमजद हुसैन साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक करने की ज़रूरत है। लेकिन सर उसमें जो लॉ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस, उनका एक सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है। वो इशू ये है क्योंकि आपने तो यू आर इन दैट कमेटी जिन्होंने रिकमेंडेशंस दी और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आपके साथ है सुप्रीम कोर्ट में देखते रहे हैं, आपकी इंडेवर्स को भी वो अप्रिशिएबल है, कमेंडेबल इंडेवर्स है। लेकिन सर अब हुआ ये है कि जो कर्टेलमेंट ऑफ 100 सीट्स की गई है, उसकी वजह से ये कहा गया कि 5 परमानेंट टीचर्स होने चाहिए, 5 विजिटिंग्स होने चाहिए फॉर 100 सीट। ये जजमेंट के अंदर अगर आप इससे ज्यादा सीट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इसी तरह टीचर्स की रेशो बढ़ाते जाएं और ज्यादा सीट्स लेते जाएं। अब हमारे लिए मसाइल ये आ रहे हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जब हमने टीचर्स बढ़ाई और अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कंसर्न यूनिवर्सिटी, वो ये कह रही हैं कि जी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको नंबर ऑफ सीट्स और नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको हर साल 5 परमानेंट टीचर्स एक्वायर करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पार्ट 1 के लिए 5 टीचर्स लिए, 100 सीट्स दे दी। पार्ट 2 में आपको मोर 5 टीचर्स परमानेंट लेने हैं, पार्ट 3 में मोर 5 परमानेंट टीचर्स, 4 में, यानी 25 परमानेंट टीचर्स होंगे 5 सालों में, और 25 मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होंगे टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स। सर ये तो यूनिवर्सिटी में भी इतने टीचर्स मेरा ख्याल नहीं होते। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल कि एक जो लॉ कॉलेज है वो 25 टीचर्स रख के इफेक्टिवली उनको सैलरी भी पे करे, जिस तरह के आप लोगों ने पहले फरमाया कि उनकी सैलरी पैकेज ऑलरेडी इनको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो सर मेरी गुजारिश है कि इसको भी जरा देखने की जरूरत है, इसकी बेटर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। कि इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ऐसे ही है या अदरवाइज है? कलानूरी साहब जी, मेरा ख्याल ये है जी, बड़ी क्लियर सी बात है। ये जो 5 स्टूडेंट्स है ना, जब आपने 100 की इनटेक के साथ 5 स्टूडेंट्स है लेने हैं, वो तमाम सालों के लिए 100 के साथ 5 ही चाहिए आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है। मैं दूसरी बात करता हूँ कि ये बिल्कुल मिस इंटरप्रेट उस जजमेंट को किया जा रहा है। मैंने उसे बार बार पढ़ा है, मैं तो उसके साथ एसोसिएटेड हूँ, अभी रिव्यू हुआ है। मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके एज ए माइकस क्यों रहा है, मैंने उसमें फिर बोलने में यही बात करूंगा। ये बिल्कुल ज्यादती की जा रही है, जिसको कि पाकिस्तान बार काउंसिल शुड पुट देयर फुट डाउन। आपने क्लैरिफिकेशन के लिए उनको लेटर लिखे तब भी करना। मेरी उनसे भी बात हुई है, और लीगल एजुकेशन कमेटी के जो चेयरमैन है आजम नजीर तारड़ साहब, वो मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात के ऊपर। वो आज इस वक्त अवेलेबल नहीं, शायद लेटली हमें ज्वाइन कर लेंगे या कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो एग्री करते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ 5 परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं। अगर कोई लॉ स्कूल्स 10 ऑफर करते हैं और वो 200 सीटें उनकी हो जाएंगी, इसी तरह से इसी रेशो से बढ़ सकती है। तो इन्होंने जो अक्रॉस द बोर्ड एक क्राइटेरिया लगा दिया कि सबको 100 स्टूडेंट्स है, तो ये तो कॉलेज चल ही नहीं सकता, वायबल ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत उनकी सोच है। दूसरा, उन्होंने ये जो काम कर दिया अभी तक के जी, ये कंडीशनल थी कि HEC जो है वो, अगर आपने एफिलिएशन लॉ कॉलेजेस को दे दी है, उनसे आप चार्जेस भी लेते हैं, तो उसके बाद अगर उनके ऊपर हर वक्त तलवार ही लटकानी है, और वो भी ऐसी कमिटीज जो कॉम्पिटेंट इनफ ना हो, तो वो तो बेचारे फंक्शन नहीं कर सकते। और फिर अभी तक HEC ने क्या किया, वादे के बावजूद उस कमेटी में जाके बैठे थे ये डॉक्टर शाजिया कुरैशी, अभी आ जाएंगी, हमें ज्वाइन करेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की वो प्रिंसिपल है, हमायूं हसन साहब वहां पे थे, प्रोफेसर अहमद अली साहब जो हेड करते हैं उस कमेटी को, हमारी इस कमेटी में भी थे, वहां भी थे। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि पिछले साल मार्च के अंदर ये रिव्यू होगा। वो मार्च किया, ये भी मार्च गुजर गया है और आज हम मई में है। तो ये वो जो धात के जमाने का प्रोग्राम है, और उसमें जो सबसे बड़ी गलती है, अभी तक तो उसको ठीक करने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि आपके लिए एनुअल सिस्टम है, एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स के लिए, दूसरों के लिए सेमेस्टर सिस्टम है। आधा तीतर आधा बटेर कैसे हो सकता है? अगर 5 ईयर प्रोग्राम है तो सबके लिए एक जैसा होगा।
वो ये नहीं किया जा सकता, इस तरह होना भी नहीं है, और आइडियली ये ऐसी बात है भी नहीं। वो हम लेट कर रहे हैं, ये हमें ये कहना कि जी फिर लॉ स्कूल्स को आपने फिर अफिलिएशन भी दी है, फिर आप उनको एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करने दे रहे, आप ये बड़ी हायर फुटिंग पे कुछ को रखना ये गलत है। तीसरा मैं ये समझता हूँ कि जो एक बात उसके ऊपर आपने अभी बात, पता नहीं आपकी क्या राय है, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि जो उन्होंने ये क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया जो कि कभी भी बार काउंसिल के रूल्स में और एचईसी में नहीं था, कि आपने कहा कि चलिए जी प्रिंसिपल, अब परमानेंट फैकल्टी मेंबर के लिए तो ये क्राइटेरिया हो सकता है कि जी साहब हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज जो है उनको आप परमानेंट फैकल्टी मेंबर के लिए उनका तजर्बा है उनको कंसिडर कर लें और इक्विवेलेंट टू जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके साथ कर लें। आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी एक परमानेंट फैकल्टी के लिए जरूरी है, क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बनाने के लिए ये कह देना कि एक बंदा अगर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हुआ है वो तो प्रिंसिपल हो सकता है, उसने सारी जिंदगी किसी को पढ़ाया ना हो, पढ़ाना कोई आसान सा काम है, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आप अगर जज भी रहे हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो टीचर्स तो नहीं है जी, उनका तो ताल्लुक इस प्रोफेशन के साथ नहीं रहा हुआ, अगर वो रिटायर हो गए तो रिटायर होकर उनको ये देना बात कि जी आप जरूर प्रिंसिपल हो सकते हैं, भाई किसी में स्किल होगी। बड़े बड़े आउटस्टैंडिंग हमारे जो हैं वो प्रोफेसर हैं, साकिब निसार साहब, आसिफ सैयद खोसा साहब, उमर बिंदयाल साहब, ये टीचर हैं, एजाजुल हसन साहब टीचर हैं, और मंसूर अली शाह साहब टीचर हैं, लेकिन अब जवाद ख्वाजा साहब टीचर हैं, लेकिन तमाम कितने लोग हैं अब मैं हाई कोर्ट में अभी भी जो लोग हैं वो कितने हैं कि अगर वो कल रिटायर होंगे तो हम इनको इसलिए जो है वो बना दिए जाए। देखिए पहले बंदा लेक्चरर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है, ऐसे तो नहीं एसोसिएट है फिर प्रोफेसर, इसके साथ रिसर्च है, इसके साथ एक पूरी की पूरी ये दुनिया है। आप अपने आप को सो कॉल्ड प्रोफेसर है ना ऐसे कहना शुरू कर दें। अब ऐसे लोग जिन्होंने 40-40 साल पढ़ाया हुआ है, मैं आउटस्टैंडिंग वो टीचर्स है, वो प्रिंसिपल थे, वो बेचारे साइड पे बैठे हुए हैं, आपने एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड को जो है प्रिंसिपल बना लिया। भाई ये जॉब क्रिएट करने की जगह थोड़ी है, हमने एजुकेशन को बेहतर करना है या कि खराब करना है, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी हुई है। अगर उन्होंने उनको रखना भी है तो ये जो वकला को निकाला गया बीच में से ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने की है। बल्कि मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर आपने LLM कर लिया है और आपने डॉक्टरेट कर लिया है, आप बैरिस्टर भी होंगे, आप अच्छे टीचर जरूरी हैं, आप वकीलों के अंदर मेजोरिटी उन वकला की यहाँ पर नाकाम है जो बाहर से पढ़ के आते हैं, अनलेस वो यहाँ पे प्रोसीजर्स ना सीखें और मिल से ना गुजरे। अगर ये क्राइटेरिया है तो आप ऐसे बंदे को जिसने कभी पढ़ाया ही नहीं है और उसको आप टीचिंग के लिए लगा रहे हैं। फिर HEC एक और रोल उन्होंने बिल्कुल प्ले नहीं किया कि कभी कैपेसिटी बिल्डिंग लॉ के टीचर्स के लिए उन्होंने कभी नहीं की, हमारे टेक्स्ट बुक ही नहीं है लॉ की, उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए कि लॉ की टेक्स्ट बुक्स बनाए गए। तो HEC जो है बाकी सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी लेता, तो ये भी तो हमें करना है ना। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे जो दोनों रेगुलेटर्स हैं HEC और वो बार काउंसिल, इसीलिए मैं जोर देके ये बात कहता हूँ, और ये लिखी हुई है जजमेंट में, ये बात हमने रिक्वेस्ट करके लिखवाई थी और हमने बहुत उनको रिक्वेस्ट की थी कि दुनिया भर में जहाँ पे भी लीगल एजुकेशन रीवैम्प हुई है, परमानेंट कुछ इदारे होते हैं जो उनको लुक आफ्टर करते हैं, जो कि सिर्फ सियासी बुनियादों पे ना हो। ठीक है, वक्त का अटॉर्नी जनरल उसका मेंबर हो, सुप्रीम कोर्ट का एक जज नॉमिनेट होकर उस पर जरूर बैठा हो, उसके ऊपर लॉ मिनिस्टर भी होना चाहिए, पाकिस्तान बार काउंसिल भी होनी चाहिए, HEC भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो एकेडमिक साइड से ताल्लुक रखते हैं वो परमानेंटली उस डायरेक्टरेट के ऊपर ना, और उसको फंडिंग की जाए, और वो बार काउंसिल वगैरह इन अदारों से बड़ा होना चाहिए। लीगल एजुकेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर तो ये मुसलसल चलेगा। हम कितनी बार बार कोर्टों में जाएंगे, आफ्टर ऑल ये कोर्ट का काम तो नहीं है। उन्होंने तो एक वॉच डॉग का रवैया अख्तियार करना, जिसका जो काम है करे। उन्होंने एक दफा इंटरफेरेंस कर ली 2007 में, अब कर ली 2018 में, हम बार बार उनके पास थोड़ी जाएंगे। हम अपने मामलात को सीधा क्यों नहीं करते, और जब सीधा करते हैं तो सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। और जब मैं स्टेक होल्डर्स कहता हूं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जो लॉ स्कूल्स हैं, इन सब के नुमाइंदे उस डायरेक्टरेट के अंदर होने चाहिए, फिर बात बने। और मुसलसल रिव्यू करने वाली बात होती है। अगर हम वहां पे नहीं है और इस बुनियाद पे कि जी किसी सियासी जमात की बुनियाद पे या पसंद नापसंद की बुनियाद पे आप लोगों को मॉनिटरिंग के ऊपर लगा दें, तो आप ज्यादा जानते हैं कि कितनी मुश्किल में लोग होते हैं, और फिर उनको इस तरह तो फंक्शन हम नहीं करने देंगे। और ये शेयर वायलेशन है कि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, एंट्रेंस टू द प्रोफेशन इज नॉट। वो बिल्कुल आपका है कि आप उस पर कदगन लगाएं, लेकिन आप एजुकेशन से लोगों को इस तरह से ना रोकें। और इसका नतीजा ये हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि जी लीगल एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। आप अभी भी, पहले अमीरों के बच्चे तो पहले भी 3 साल में लॉ कर लेते हैं, आपने एक लंबा रास्ता निकाला, और आप बाकी डिसिप्लिन के साथ इसको ना मिलाएं। HEC जो बाकियों के लिए कहती है जी BA भी लंबा हो गया तो LLB,
मेरा ख्याल है इसको भी जरा रिकंसिडर करना चाहिए। वो 3 साल वाला अच्छा आइडिया था, बड़े बड़े आला उसके, मैं टॉप क्लास आपको ऐसे जजेस और लॉयर बता सकता हूँ जिनके पास बार की कोई डिग्री नहीं है। एक ब्रोई साहब के पास, आबिद मिंटो साहब के पास कोई बार की डिग्रियां नहीं है, साकिब निसार साहब के पास कोई बार की डिग्रियां नहीं है, यहीं से पढ़े हुए लोग हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था और 2 साल का लॉ था, लेकिन बड़े बड़े बढ़िया लोग आए हुए चीजों को बेहतर करने की। ये क्राइटेरिया कि जो चीज बाहर से ठप्पा लग जाती है वो हर वक्त ठीक है, उनको भी किसी डिसिप्लिन में होना है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ लंदन यूनिवर्सिटी का लॉ थोड़ी है, सिर्फ लॉ तो इधर अब मलेशिया की यूनिवर्सिटी भी आ रही है, आपके हांगकांग की यूनिवर्सिटी भी आ रही है, इंग्लैंड की 3-4 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। तो आपने क्या सारा कीमती ज़र मुबादला बाहर ही जाता जाएगा और ये ट्यूशन सेंटर से काम करते रहेंगे? मुझे पाकिस्तान के आम आदमी के लिए लीगल एजुकेशन के अंदर एक्सीलेंस चाहिए और उसको सही पैसों के ऊपर मौके मिलने चाहिए, और अकल और इल्म जो है किसी इलाके का मोहताज नहीं। बहुत बहुत बढ़िया लोग दूर दराज इलाकों से सिर्फ उनको पॉलिश करें, वो बड़े टॉप क्लास वकील बनेंगे, वकील भी बनेंगे, आपके लीडर्स भी बनेंगे, पॉलिटिकल लीडर। वकीलों से बेहतर कौन होता है? वो अच्छे होंगे, जजेस भी अच्छे होंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे आएंगे। ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये बड़ा एजाज है कि हम जिस फील्ड में है, तो हमें एक्सीलेंसी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज आप कुछ और कहना चाहते हैं? आपके साथ में आतर रिजवी साहब को देख रहा हूँ, उनको मेरे सामने लाइए। वो जी आतर रिजवी साहब सर, हाँ जी, मेरे पास ही बैठे हैं और वो बचना चाह रहे थे आपसे, लेकिन आपकी जो कीन जो नजर है आपने देख लिया उनको। तो आतर साहब जी, वो इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, आई वांट टू हियर हिम आल्सो। प्लीज सारे लोगों के साथ अपने अक्ल को शेयर करें जी। इसका सर ये जो मैंने रिक्वेस्ट किया तो इसका कुछ प्लीज जरूर कुछ ना कुछ इसका सद्भाव निकालिएगा। और दूसरा जो आपने बात की है कि लीगल एजुकेशन महंगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लीगल एजुकेशन महंगी हो गई है। जो एम्बार्गो लगी है 100 सीट्स वाली, हमारे पास बीइंग, मैं आपको सर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं इधर बैठा होता हूँ, मैंने जब हमारे पास 300 सीट्स थी तो कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे होते थे जिनको हम 30-30, 40-40 हजार में और फ्री भी दाखिला देते थे। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, कोई क्लर्क का बच्चा है, अब अगर वकील है और वकील का मुंशी है और उसके बेटे ने सारी जिंदगी मुंशी रहना, क्या उसका हक नहीं है कि वो लॉ कर सके? अगर वकील का बेटा और उसका और मुंशी आता है और उसका बेटा हमारे पास आता है, तो मैं कितने अपनी, मेरी एक लिमिटेशंस हैं, इस तरह हर लॉ कॉलेज की लिमिटेशंस हैं, वो उसके मुताबिक 2, 3, 4, 5 लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे। और मुझे अफसोस होता है उस वक्त कि जब मैं उनको एडजस्ट नहीं कर पाता, ये जो एम्बार्गो लगी है 100 सीट्स की, इसकी वजह से। और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस वक्त को कंसिडर नहीं कर रही कि 100 सीट से ज्यादा भी कोई लॉ कॉलेज ले सकता है, अगर उसके पास फैकल्टी और रिक्वायर्ड रिक्विजिट क्राइटेरिया पूरा करता है। नहीं करता तो मत दीजिए, अगर वो क्राइटेरियन पे पूरा होता था तो उसको दीजिए। इसका सर कुछ सद्भाव कीजिएगा, इसकी क्लैरिफिकेशन बड़ी रिक्वायर्ड है। और आप क्योंकि बैठते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन साहब जो हैं लीगल एजुकेशन कमेटी के, आजम नजीर तारड़ साहब हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए, हम भी उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका कोई कोई ऐसा कोई लेटर लिखें जिसकी वजह से कोई क्लैरिफिकेशन हो जाए, ताकि सारों के लिए आसानी हो जाए। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है जी। ये जो लिकोनास पॉइंट आउट किए हैं कि इस जजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें मिस इंटरप्रेट हो रही हैं और सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं और इससे जो खराबियां हो रही हैं, तो रेगुलेटर्स को दे शुड पुट देयर फुट डाउन। हम एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस जो है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ये चीज़ें लिख कर देंगे और HEC को भी कहेंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कहेंगे कि इनके ऊपर अमल दरामद करें। और हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाके ये केसेस रिव्यू में पढ़े, उनको भी कहेंगे कि ये जो जिस तरह से इस जजमेंट को दिया गया और उसके बाद से बहुत सारे इश्यूज हमने पॉइंट आउट किए हैं, इनको क्लैरिफाई करना है, वरना लीगल एजुकेशन का जो भले का काम हमने अच्छी सूरत में लेके गए हैं उसको और आगे जाना चाहिए, ना कि उससे कुछ लोगों का नुकसान हो जाए। और डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं पे भी अलाउड ही नहीं है। ये हम मुझे एक सवाल पूछा है, मैं आयशा जवाद को मैं कहूंगा जी वो खुद आके बात करें, लेकिन बड़ी पर्टिनेंट वो बात कर रही है। वो कहते हैं जी जो यूनिवर्सिटीज LLM डिग्री जो है अवार्ड करती हैं और उन्होंने विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और रिसर्च के अवार्ड करने शुरू की हुई है। देखिए इस जजमेंट के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को ये कहा है कि एक रेशो है कि कितने स्टूडेंट्स के साथ एक आपका सुपरवाइजर होगा तो आप उतने सीटें ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल उसको मजाक बना के लोगों ने एक छोटे से कमरे के अंदर एक सेंटर बनाया और 150 बंदों को एडमिट कर लिया कि आप LLM कर रहे हैं। तो ये तो एक एजुकेशन को लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। दिस इज नॉट अ जोक। वो पाबंदी लगाई गई है और वो जहाँ पे भी कहीं वायलेशन हो रही है वो गलत है। और इसके ऊपर फिर रेगुलेटर्स को जो है ना देखना चाहिए कि अब जो लोग ऑफर कर रहे हैं क्या वो मेयार के मुताबिक कर रहे हैं, क्या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा तो नहीं ले रहे। और दूसरा उनका जो क्राइटेरिया एग्जामिनेशन का है वो किस तरह से उनको कर रहे हैं और उनकी रिसर्च को किस तरह से वो वे करते हैं।
तो बिल्कुल दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड इनटू। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, अच्छी बात पॉइंट आउट की है। आप आते रिजवी साहब को लाइए जी, उनकी टर्न है जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम जी, प्लीज आते साहब बताइए आप क्या कहते सर मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आपकी तायराना नज़र से बच जाऊं। अच्छा सर, मेरे सारी बातें तो आप लोगों ने कर ली हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ का, बीइंग एकेडमिक के, अगर टीचर ट्रेनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा हम जोर दें। और एक चीज़ है, हम लोगों को जो इशू आता है, सिस्टम हो गया है, सिस्टम को थोड़ा टाइम लगेगा चलने में। और ऑब्वियसली जब सिस्टम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, फिर उसके ऊपर हम लोग मीटिंग्स करते हैं और चीज़ें 1-2-3 सालों में ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम के जी कितनी सीटें होंगी, क्या रेशो होगी, जो मैं एक चीज़ एज ए टीचर डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर एनुअल सिस्टम का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ। और आज भी हम देख रहे हैं कि जी जो आप लोगों की फैलिसी थी, जो रीज़न थी कि हम इसके अंदर क्वालिटी लाएंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वही आ रहा है, डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स। तो अगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ा रहे हैं लोग और जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ एग्जामिनेशन जो पेपर है उसका पैटर्न चेंज कर दें, पहला सवाल कंपलसरी कर दें, वो जो घिसे पिटी गाइड्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, और जब पैटर्न चेंज हो जाएगा तो टीचर क्वालिटी खुद ही इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो अच्छा टीचर पढ़ाएगा उसी का बच्चा पास होगा। हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा। आज भी हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मैंने पिछली सेंचुरी में पढ़ी थी, और मेरे फादर ने पाकिस्तान बंद के बाद जब लॉ किया था तो पढ़ा था, सेम क्वेश्चन, सेम टॉपिक्स, सेम चीज़ें। तो अगर इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए, हम सब इसमें तैयार हैं। जो हमारे आप जैसे गुरुज हैं, जो सीनियर्स हैं, हुमायूं एहसान साहब हैं, नफीर मलिक साहब हैं, वो लोग खुद अपनी ज़ात में इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनसे ट्रेनिंग लेने को तैयार हैं। हम जिनके सीनियर हैं, हम उनको जो कुछ हमें आता है गाइड करने को तैयार हैं। कोई ऐसा कंसोर्शियम बन जाए जिसके अंदर एटलीस्ट टीचर्स की ट्रेनिंग भी साथ साथ चल रही हो, और टीचर की ट्रेनिंग में अगर पेपर ठीक आना शुरू हो जाए तो खुद ही जो टीचर्स हैं वो अपने आप को ठीक करेंगे, वरना वो सिस्टम से खुद ही आउट हो जाएंगे। मेरी तो ये हम्बल सबमिशन है। बाकी चीजें जो डिस्कस हुई हैं, मैं उन पर इसलिए लाइट नहीं डालना चाहता कि आपने, राणा साहब ने आपने और बाकी लोगों ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, उनको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे सर। अतर साहब आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, I'm affiliated with legal education in Pakistan for the last now almost 28 years, और मुख्तलिफ फोरम्स में मैंने रह के देखा टीचर यहाँ पे है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर लॉ का टीचर बहुत मुश्किल है तलाश करना। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी कोशिश की, बहुत एडवर्टाइज किया। उसकी 2-4 रीजन है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जिस किस्म के आप लोगों को सैलरी देते हैं और जो पर्क्स ऑफर करते हैं, इसके ऊपर कोई अच्छा टीचर आपके पास नहीं आ सकता। जैसे मैं अब एक आपको ज़ाती तौर पे मिसाल देता हूँ। मैं लम्स के अंदर जाने का मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वहाँ पे बहुत अच्छे सैलरी पैकेज मिलता है तो अच्छा टीचर भी आ जाता है। दूसरी ये है कि टीचर को भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसका जब तक रिसर्च वर्क वगैरह नहीं है, और HEC ने कभी कभी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने अपना रोल कौन सा कोई अदा किया है ना, हमारी बार काउंसिल वगैरह ने किया। डायरेक्टरेट बतानी पड़ेगी, जिससे टीचर को भी तो अपने आप को रिफाइन करना है ना। बिला वजह तो टीचर नहीं बनता। फिर आपको ट्रेनिंग टीचर्स लाएंगे। हमने ये तजर्बा किया, आपने भी 12 किया होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं कल वही बहुत अच्छे बाज़ औक़ात जाकर टीचर बनते हैं। कुछ का एप्टीट्यूड इसके ऊपर होता है, पहले वो टीचिंग असिस्टेंट बनेगा, फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग होगी। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, गुरुज हैं इसके अंदर। जैसे आपने हुमायूं साहब का नाम लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिनको एज अपेयर करना चाहिए। यहाँ पे उसामा सिद्दीक साहब हैं हमारे, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनिस्ट दैट वी हैव इन द कंट्री। बहुत बड़ा थीसिस भी उन्होंने लिखा, लम्स लॉ स्कूल बनाया हुआ उनका। इंशाल्लाह कल कॉन्फ्रेंस में कल वो ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो बिजी थे, कल वो भी बोल रहे होंगे इसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं, ये तो लाइक बीकन लाइट है, उनसे आप आइंदा सीखते हो। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, एक दूसरे से सब लोग शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली पढ़ा रहा होता है वो काम करता है और उसको टीचर ट्रेन करना है। और इसके ऊपर जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे, हर बंदा कहता है कि मैं टीचर हूं। मैं लोगों को कई दफा कहता हूं जी आपको गलतफहमी है, आप मेरे साथ लॉ स्कूल में चलें, आप एक से दूसरे लेक्चर में फारिग ना हो गए तो मुझे पूछिएगा। आज के बच्चे वो नहीं है, दुनिया ग्लोबल विलेज है, वो ऐसे सवाल पूछते हैं। हम तो शायद नालायक आदमी हैं, 27 बरस हो गए पढ़ाते हुए। आज भी 1 घंटा पढ़ाना हो तो 5 घंटे पढ़ के जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई नया सवाल आ जाता है।
ये जो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन है ये मस्ट है, और वो जो एजुकेशन है वो टीचर की भी एजुकेशन है, और टीचर ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है। यू हैव टू ट्रेन द ट्रेनर्स आल्सो। ये वो स्किल्स हैं। किसी जमाने में जो मेथड था, मेथोडोलॉजी थी, वो और थी पढ़ाने की कि जी जैसे आप कह रहे हैं वो। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ स्कूल पढ़ाता रहा हूँ, लॉ स्कूल में मैंने 15 साल तक पढ़ाया है, उधर भी पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में भी। मुझे ट्रबल ये थी कि मैं पढ़ाता मैं हूँ, मेरे बच्चे का पेपर पता नहीं कौन सेट करता, चेक पता नहीं किसी वकील का मुंशी कर रहा हो, तो मेरा उससे 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं था। अब लम्स में पढ़ाते हैं, हमारा सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है, 2-वे स्ट्रीट है, और फिर एक असेसमेंट मेरी बच्चा भी करता है, जैसे मैं बच्चों की करता हूं, जैसे बॉस एम्प्लॉय को करता है, एम्प्लॉय बॉस को करता है। ये दुनिया में नया सिस्टम है। टीचर की क्यों नहीं असेसमेंट होगी? फिर सरप्राइज विजिट टीचर का क्यों नहीं होगा कि दूसरे टीचर की क्लास में अचानक चले जाए, वो भी उसको असेस करे? तो आप उनका भी एक क्राइटेरिया, अगर आप उसके ऊपर नहीं रहते तो आप उस इंस्टीट्यूशन में आप नहीं रह सकते, और आपको उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना आइंदा जो प्रमोशन मिलनी है, इसी तरह से आपको जो ये स्टेटस मिलता है कि असिस्टेंट से आप एसोसिएट हो गए या डॉक्टरेट आपने कर ली है, तो इसका करने के साथ तो ये भी साथ जरूरी है ना कि आप प्रोफेसर तो नहीं बन सकते डॉक्टरेट करने से, वो तो पढ़ाने से उसका ताल्लुक है, रिसर्च से ताल्लुक है। आप पढ़ाएंगे, यहाँ पे पहले दिन आके स्टूडेंट कहता है जी मैं प्रोफेसर हूँ। भाई प्रोफेसर ऐसे तो नहीं होता ना, ये एक फील्ड है जिसके अंदर प्रोफेसर बनने के लिए लंबा सफर है, लेक्चरर से लेके प्रोफेसर तक का। तो हमने इसको बिल्कुल वो इजी ले लिया। जब तक हम टीचर अच्छा नहीं लाएंगे, टीचर प्रोड्यूस करता है, और वो सिस्टम हमने नहीं बनाया। और उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी अकेडमीज होनी चाहिए। अब इसके अंदर जुडिशियल अकेडमीज आ जाती हैं। मैं इतने अरसे से जुडिशियल अकेडमीज में जा रहा हूँ। आप जजेस को क्या पढ़ा रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, कौन लोग पढ़ा रहे हैं, और उनकी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वो वर्किंग जजेस हैं। एक बंदे को 15-16 साल तक जज के तौर पे काम करते हुए हो गए। आप उसको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाएंगे, वो चीजें सिखाएंगे जो पहले उसने लॉ स्कूल में नहीं पढ़ी थी। ये जो नए डिसिप्लिन है, इसके ऊपर आपका जो कोर्सेज है इतने महदूद है। किसने जाना था कि एडीआर, मुझे तो नहीं पता था। मुझे पता था एनवायरमेंटल लॉ क्या होता है, मुझे कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का कोई आइडिया था कि जी ये एक नई चीज आ जाएगी। मुझे ये साइबर लॉज वगैरह का कोई आइडिया था नहीं था। मुझे डीएनए का कोई आइडिया था कि ये आ जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो अब हमें सीखनी है। और जब टीचर ऐसा होगा जो ये जानता होगा तो वो आगे पढ़ाएगा। हमें वापस हर वक्त स्कूल जाना है, एकेडमी में जाना है। बेशक मैं जज हूँ, बेशक मैं टीचर हूँ, बेशक मैं वकील हूँ, बेशक मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। और आपको ऐसे कोर्सेज भी लाने हैं कि जो कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, क्योंकि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए बुलाएं, बेशक सर्टिफिकेशन वगैरह करें, उसका भी है। फिर इन्होंने कोई आपको बार काउंसिल के जो बड़े महदूद से सब्जेक्ट हैं उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। नए आपके पास लग्जरी है ही नहीं कि आप नया सब्जेक्ट उसमें ऐड करें। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाते हैं, तो हम उनमें शौक मुब्तला करते हैं कि ये चीजें तुम सीख लो। उसको फाइनल एग्जाम में उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा होता। और ये इंसान की जिबिलत है कि वो जो कोई नई चीज पढ़े उसका कोई क्रेडिट भी मिले। जब तक हम ये ओवरऑल असेसमेंट सिस्टम, अब लंदन यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये तो ट्यूशन सेंटर्स ही है ना, कि किसी को कोचिंग कर दी। बुनियादी तौर पे क्यों लंदन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम 150 साल पुराना प्रोग्राम कामयाब है? उनका असेसमेंट का क्राइटेरिया वो जेलसली गार्ड करते हैं, उसमें धांधली नहीं है, वो ईमानदारी से होता है, इसलिए वो दुनिया में वैसे ही प्रोग्राम रहेगा। तो अगर हमने ये सारा सिस्टम, पेपर सेट करने का सिस्टम, पढ़ाने का सिस्टम, टीचर को बेहतर बनाने का सिस्टम, और असेसमेंट सिस्टम, और एंट्रेंस टू द बार सिस्टम, ये सारी इंटर रिलेटेड इशू है। लीगल एजुकेशन सबके लिए है, तो फिर ये सब सेक्टर्स में बेहतरी होगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, टीचर के ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। इसको लोगों ने बिल्कुल ही हल्का ले लिया हुआ है। आप बाहर की दुनिया के अंदर तो स्कूल टीचर की बड़ी वैल्यू है, लेकिन मास्टर्स लेवल पे बच्चों को पढ़ाना, इट इज नॉट अ जोक। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए सबसे ग्रेटिफाइंग दिन वो होता है जिस दिन मैं पढ़ा के आता हूँ। ये वकालत के अंदर बड़े पैसे हमने कमाए और बड़ी टॉप और एपेक्स भी देखी है। आप बिलीव करें, टीचिंग तो पेशा है, पैगंबरी है, लेकिन हम जिनके फुट स्टेप्स में, हमें वैसा टीचर बनना है, और टीचर का एहतराम भी वैसे लेना है। और एहतराम लाने के साथ साथ एक तरीका ये भी है कि उसको पेट लगा हुआ है, उसे पे भी वेल करें बाकी बातों के साथ। इतना खुदाई खिदमतगार के तौर पे लोग बहुत देर तक काम नहीं कर सकते। ये सरमन देना बहुत आसान है। सचमुच एक प्रोफेशन को जिसने अपनाया, उसके लिए दुनिया में लोगों की बड़ी अच्छे उनको सैलरीज मिलती हैं, जिससे उनका कम से कम किचन और जरूरियात जिंदगी चलती रहे। उनका भी घर है, उनके भी बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज, मेरा ख्याल है मैंने आपकी तर्जुमानी कर दिया, लेकिन हम इसको लिख पढ़ के आगे लेकर जाएंगे और हर फोरम पे इस बारे में बात करेंगे। मैं इस मसले में आपका वकील भी हूँ, आपका साथी भी हूँ। आप माशाल्लाह मेरे से बहुत ही आला टीचर है, एक से एक आप बढ़िया हैं।
नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये इकट्ठे होने का मकसद ही है। शाह साहब ये बताइए कौन साहब और हैं लाइन पे किसी की और? जी, मिस उजाला अकरम हैं जी, और मिस आबदा हैं, ये आपदा और को ले उनके लीजिए, भी आपदा खालिद इंटरनेट को का। पहले लें, फिर उजाला को सुनते हैं। आपदा से लें प्लीज, जी उनको जी उनका माइक ऑन म्यूट करें जी, करते हैं। आप 2 मिनट मुझे सिर्फ दें, मैं ताकि उनको फिक्स करवा दूं ये। प्लीज। आप उतनी देर अपनी बात जारी रखें। इसके बाद हम उजाला को जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो एक लंदन यूनिवर्सिटी का लॉ स्कूल रन करती है, और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में एक प्री बैरिस्टरशिप का जैसे कॉन्सेप्ट है वो लेके पहला लॉ स्कूल है जो आए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि जी ऑनलाइन पे क्या कुछ हो सकता है, और इस दिशा में उन्होंने क्या नया काम किया, उनका अमेरिका में भी पढ़ाने का तजुर्बा है, तो उनको क्या मुश्किलात आ रही हैं, और हमें भी उनसे जो शिकायतें हैं और वो भी हम भी करेंगे, और इक्विवेलेंस कोर्स जो बनाया उसके बारे में उनसे भी हम जरूर पूछना चाहते हैं। शी इज द राइट पर्सन फॉर दैट। आयशा जवाब देखें अगर वो हैं तो, कनेड लॉ स्कूल को वो हेड करती हैं, ओनली लॉ स्कूल फॉर द लेडीज ओनली, उनकी भी हम बात सुनना चाहिए। पहले आप आपदा को देखें। दिशा साहब, राब्ता हो गया? जी सर, मैं इसी की पीछे हूँ। मुझे जस्ट आप 1 से 2 मिनट दें। एक्चुअली इंटरनेट का थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम आपको था, पहले मिलते हैं, उनसे बात और कर। मिस उजाला दूसरी दूसरी कॉन्फ्रेंस पे भी बात कर रही हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उनका बिजी है सर। चले चले आप उतनी देर आपदा को ले लें। उतनी देर सर अमजद साहब से कोई बात करते हैं। अमजद साहब जनाब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के। खासतौर पे अमजद साहब से इस हवाले से बात करते हैं कि जी ये बड़ा पुअर पे स्केल स्ट्रक्चर है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग पढ़ा रहे हैं। खैर मैं तो पढ़ाने के पैसे नहीं लेता, मैं मुफ्त पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंसल्टिंग किस्म का पैकेज है जो लोगों के लिए होता है। वो बड़े जज्बे वाले लोग हैं जो इस जगह पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर कुछ बेहतरी हुई इस जजमेंट के बाद, या कोई इस तरफ काम ही नहीं हुआ, ये भी पूछे। जी अमजद साहब फरमाइए। जी, मेरी आवाज आ रही है सर? ये आ रही है प्लीज। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं 2-3 बातें करूंगा। जहाँ तक पैकेज का ताल्लुक है सर, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो टीचिंग में आपको पता है मौजूद हैं। एक तो वो तबका है जो शौक से आता है टीचिंग की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में से हूँ जो शौक से आया हूँ, इसकी परवाह किए बगैर के पैकेज कितना है। मतलब ये असल असल टीचर ये होता है जो शौक से आता है और फिर वही चेंज भी लेके आता है, और वही फिर वो आपने जैसे बात की कि ये पेशा पैगंबरी है, वो उसका हक भी अदा करता है, वो फिर मेहनत भी करता है। अब यकीन करें हमारे फैकल्टी के अंदर, मैं मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को मिला लें, आपको 50% लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनको शौक नहीं है टीचिंग का, लेकिन चूंकि वो एक रिज्क रोजगी के हवाले से कहीं वाबस्ता हो गए तो वो टीचर बन गए। तो ये तो अपनी जगह एक है, ये तो शौक वाली बात हो गई। लेकिन ये बात इक्वली इंपॉर्टेंट है कि सैलरी पैकेज थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा चले ना हो, लेकिन इतना डिसेंट हो कि जब हम कंपेयर करते हैं कि अगर वही ये काबिल बंदा अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो देखिए वो थोड़ा कितना आगे तक चला जाएगा। चलिए उतना ना सही, उसको थोड़ा डिसेंट कर दिया जाए, और यही हमने एफर्ट की मिलजुल के। और अनफॉर्चुनेटली सर, ये मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ, इसके ऊपर कई मरतबा HEC से रब्ता किया गया, कई लोग उन्हें वहाँ पे उनको ईमेलें की हैं और रिक्वेस्ट की है, लेटर भेजे हैं कि जी आप मेहरबानी करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेगुलेटर बना दिया कि HEC जो है वो ये तय करेगा कि पैकेज कैसा होना चाहिए। तो वो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, वो टस से पस नहीं हुए। और बीच में कई दोस्तों ने कहा जी हमें चाहिए कि हम इसकी जो है कंटेम्प्ट मूव करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इतना कुछ टाइम गुजरने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये जस्टिफाइड भी है मेरा ख्याल है। अब या तो कोई पिटीशन हमें करनी पड़ेगी इसकी कंटेम्प्ट की, या फिर आप से हम रहनुमाई लेंगे कि इस हवाले से क्या किया जाए। जी दूसरा मेरा ये ये जो है आपने, आपको बिल्कुल एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है की जजमेंट में उन्होंने आखिर पे कहा हुआ है कि इस इशू के मतलब अगर कोई भी आपको कोई शिकायत होती है या कोई चीज राइज होती है तो ये हाई कोर्ट नहीं जाना, आप हमारे पास डायरेक्टली आ जाए। तो मैं ये ये जानता हूँ बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो वाई नॉट, ये बड़ा पर्टिनेंट मसला है, इसके ऊपर भी आना चाहिए। और खासतौर पे इसको दो चीजों से मिलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जब HEC के पास गए थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत, और उस कमेटी के अंदर मैं शामिल था, उन्होंने हमसे वादा किया कि कैरिकुलम भी रिव्यू होगा, उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। और दूसरा, उन्होंने टीचर्स के लिए
कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने वादा किया था। वो हर सेक्टर के अंदर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कोई कोर्सेज जो HEC ने कभी लॉ टीचर्स के लिए नहीं बनाए। फिर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं वो बड़े शर्मनाक पैसे हैं जो वो देते हैं। कोई अच्छे पैसे दें तो हमारे पास तो लॉ की टेक्स्ट बुक्स नहीं है। आप लॉ पढ़ाते हैं, हमें ये कितनी डिफिकल्टी है कि हम अपनी हिम्मत से खुद अपने नोट्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी टेक्स्ट बुक्स बना रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर लॉ की टेक्स्ट बुक्स ही नहीं है। तो यह HEC का ये ड्यूटी है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो ये सिर्फ HEC के खिलाफ नहीं होगा, ये जो होना है ये तो गवर्नमेंट्स के ऊपर कंटेम्प्ट लगती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स जो है इस सिलसिले के अंदर फंड्स एलोकेट करेंगी, जिससे टीचर्स के जो है सैलरी पैकेज बेहतर होंगे, तो वहां से आने हैं पैसे। और फिर यह है कि डायरेक्टरेट जो हमने एस्टेब्लिश करने के लिए उस जजमेंट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एक लीगल एजुकेशन के ऊपर एक डायरेक्टरेट फुल फ्लैज बनेगा। अभी तक बना ही नहीं है। वो क्यों नहीं बना? कि वो भी इनके पास फंडिंग नहीं है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ये सारे इश्यूज जो हैं इनको रेज करना चाहिए। और मैं जो है आपकी आवाज वहां पे इस तरह से बनूंगा कि बहरहाल मैं उसमें अमाइकस भी हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी के बाद भी, तो आपके साथ मिलकर ये वाली आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन आपस में डिबेट इसलिए कर रहे हैं कि हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हम फोकस करके इस कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर इसकी जो है ना रिकमेंडेशंस और जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए हैं उनको जरूर आगे लेके जाएंगे। उस बेसिस के ऊपर हमें कोर्ट में जाना है, वहां भी जाएंगे। हमने पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कहना है, हमने HEC को भी कहना है कि वो अपनी ड्यूटी करें। नहीं करते तो फिर कोर्ट के अंदर जाके, फिर कोर्ट का यही काम है कि जो बंदा नहीं करता, पहले भी इन्होंने नहीं किया, अगर ये कर रहे होते तो क्यों ये 2 जजमेंट 2007 वाली आई और अब भी 2018 की। तो आपको तो पता, हमने दिन रात जाग के इसके ऊपर काम किया हुआ है। कितने लोगों ने जज्बे के साथ ये काम किया है, क्योंकि हमें ये पता था कि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ कर रही है। कल किसी ने हमारी ये बात नहीं सुनी, वो कहेंगे कि हम क्यों आपका ये मामला ले, लेकिन इससे बहुत सारी बेहतरी हम करवा सके हैं और कम से कम डायरेक्शन मुतय्यन हो गई है। अब कोई इससे हटेगा तो एक बुनियाद हमारे पास है कि हमने कहा इसकी वायलेशन आप कर रहे हैं और वो हमें बिल्कुल, फिर हम कोर्ट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हम आपके साथ आपकी आवाज बनेंगे, आप पिटीशंस लोगों से इंशाल्लाह सर, बहुत हम बहुत शुक्रिया सर, आपसे यही तवक्को है इंशाल्लाह आपसे राब्ते में। उसे बेहतरी करने की जरूरत होगी, प्लीडिंग में बेहतर करने की हम जरूर करने के लिए वो भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे सर। आपको देख के बहुत यकीन करें कि दिल खुश होता है, इंसेंटिव मिलता है कि आप माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। हालांकि आपका काम दूसरा है, फील्ड वाला है, लेकिन जो मोहब्बत आपकी लीगल एजुकेशन से है और टीचिंग से और ये स्टूडेंट से है, अनमैचेबल। मैं रियली आपसे इम्प्रेस हूँ और अल्लाह आपको और हिम्मत दे और ताकत दे और सेहत दे आपको। अच्छा, मैं तो उसी एक और थोड़ी गुजारिश कर लूँ, ये जो पेपर पैटर्न के ऊपर कुछ दोस्त बात कर रहे थे, ये दरअसल सर ये यूनिवर्सिटीज की ड्यूटी है। ये यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि पेपर पैटर्न को इम्प्रूव करें। अच्छा, हमने इस्लामी यूनिवर्सिटी, असल मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरा ताल्लुक BZED से नहीं है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। वो हमारे दोस्त जब बता रहे थे, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ने ये एफर्ट की है कि हमने पेपर पैटर्न्स को चेंज किया है। हमने वो घिसे पिटे तरीके से जो सवाल आते थे वो हमने छोड़ दिए हैं, प्रपोजिशन के ऊपर हम आ गए हैं। और उसके नतीजे में आपको पता है कि हमें थोड़ा वो फेस भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम इस तरह की चीजें आने से थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल वो उसी तरीके से कर रहे होते हैं तैयारी, उनको थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब उनको ये है कि अब पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे इलाके के कॉलेजेस हैं, उनको भी थोड़ा ये अब जरा पता चला है कि अब कुछ पढ़ाना भी पड़ेगा और स्टूडेंट्स को लगा कि कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने तो इम्प्रूव किया है। बाकी मैं समझता हूँ इंडिविजुअली अगर हर यूनिवर्सिटी अपने तौर पे थोड़ा कर ले, कोशिश कर ले, तो इससे भी क्वालिटी में एक इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये एक और चीज से फिर जुड़ी है फाइनेंस के साथ। सर मसला ये है कि जब हम एक पेपर चेक करते हैं तो उसके हमें मिलते हैं 40 रुपीज। मतलब चले, मैं तो जैसे मैंने अर्ज किया, मैं तो शौक है तो कर रहा हूँ काम, लेकिन हमारे बहुत से लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि यार ये जो है एक पेपर चेक कर रहा हूँ, तो एक पेपर उसको लग जाते हैं 15-20 मिनट लगते हैं सर प्रॉपर चेक करने में। वो टाइम को कैलकुलेट करते हैं, यार मेरा इतना टाइम लगेगा, तो वो फिर क्या करते हैं, वो पेपर का बंडल उठा के मुंशी को दिया, दोस्त को दिया, चल यार तू चेक कर और इतने इतने नंबर लगा के पास करता जा। तो ये फिर ये जुल्म होता है। अगर हम उसमें भी थोड़ा सा डिसेंट, हम थोड़ा सा रेम्यूनरेशन बना दें, कर दें, और थोड़ा कोशिश करें कि अच्छे लोगों को एग्जामिनर बना दें, तो मेरा ख्याल है ये भी इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ा बेहतर हो सकता है। अच्छा, तीसरी एक हमारे दोस्त ने अभी बात की थी कि जब वो एफिलिएशन के लिए जो यूनिवर्सिटी है उनको, वो ये कहते हैं जी हर साल आप 5 टीचर ऐड करेंगे तो ये जाके होगा। मेरा ख्याल है वो किसी बेवकूफ ने बात की है। आपने सही उसमें थोड़ी आपने रहनुमाई कर दी कि ऐसा नहीं है। वो जो टीचर हैं वो एक ही दफा हैं और वो सारे प्रोग्राम के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं। बल्कि सर मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप एफिलिएशन दें, ये मैं मतलब मैसेज कर रहा हूँ पूरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को, कि जब आप एफिलिएशन दें तो आप ये देखें
देखें कि पहले साल में जिसको पहली मरतबा एफिलिएशन दी जा रही है उसने पहले साल में 6 कोर्स पढ़ाने हैं, तो अगर उसके बाद उस साल में उन 6 कोर्स के पढ़ाने के टीचर मौजूद हैं तो मेरा ख्याल है एफिलिएशन उनका हक बनता है अगर वो कहते हैं ये टीचर हैं और वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब वो आगे जाएंगे अगले साल जाएंगे फिर उनसे पूछा जाए जी हाँ जी अब आपके पास कितने टीचर हैं, तो ये जुल्म होगा। अगर इस तरह सख्ती की जाए तो इस तरह कॉलेजेस बिल्कुल नहीं चलेंगे और ये तो फिर प्राइवेट सेक्टर को महरूम करने वाली बात है ना। तो ये इस जुल्म से हमें इनको बचाना होगा और जो भी ये हमारे दोस्त हैं इनको चाहिए कि ये फर्दर इसके ऊपर बात करें कि जनाब ये आपका व्यू गलत है और इसके ऊपर अगर कोई रहनुमाई चाहिए तो हम लोग भी तैयार हैं, हम लोग भी मतलब जो हमारी राय होगी ओपिनियन होगी हम भी देंगे, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकी आप ज्यादा बेहतर बात कर रहे हैं। मजीद अगर नए दोस्तों को लिए मेरा ख्याल है तो उनकी भी बात सुनने जरा। जी सर। जी शहबाज साहब। जी सर, एक्चुअली हमारा टाइम जो था कॉन्फ्रेंस का कंक्लूड करने का सर वो 5 बजे का टाइम है और हमारा वो टाइम बिल्कुल करीब है। मैं चाहता हूं कि आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से दें। बाकी जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको इंशाल्लाह वो कल हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह उनसे हमारी कल बात हो पाएगी। तो over to Mr. Zafar Iqbal Kalanuri for concluding remarks, sir. आपने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, ये जो कॉन्फ्रेंस आपने लीगल एजुकेशन पे करवाई है। असल में मेरे जहन में ये बात थी कि मैं इसको फिजिकली लोगों को इकट्ठा करना चाह रहा था और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस मैंने करवाने का इरादा किया हुआ था। ये जो लास्ट मंथ गुजर गया, ये हमें एक सिचुएशन ऐसी कोरोना की वजह से दरपेश हुई है, तो बजाय रुक जाने के हम फॉलो अप करेंगे। हमने वो भी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे करनी है, लेकिन आपने ये बहुत आला इनिशिएटिव लिया है और पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के साथ उनकी कोऑपरेशन से आपने लिया है। मैं समझता हूँ बड़े अच्छी अच्छी बातें आज हुई हैं। हमारे पास कल के लिए बहुत सारे स्पीकर इन लाइन है और हम उनकी बातें भी सुनना चाहेंगे। आज वक्त खत्म हो गया, कल दोबारा उनको ज्वाइन करेंगे। मैं समझता हूँ यही सिलसिला और आगे चलेगा। बेसिकली ये जो 3 मैं इश्यूज बड़े समझता हूँ जिन पर बहुत बात करने की जरूरत है। हमारा पहला मसला जो हमें दरपेश है वो है कॉलेज की एफिलिएशंस के बारे में, और उसके बाद ये जो सारे किस तरह से कमेटीज उनको मॉनिटर कर रही हैं, इनिशियल एफिलिएशंस भी और बाद में जो है फाइनल भी। और आज बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हुई कि ये जो रिक्वायरमेंट है कि कितने फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, ये भी हमने सॉर्ट आउट किया है। हमारा एंट्रेंस टेस्ट की हद तक हम कामयाब हुआ, मैं समझता हूँ वो बड़ा अच्छा तजर्बा है, वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। बाहर वोकेशनल कोर्स वाला भी बहुत अच्छा तजर्बा है, लेकिन उसकी जो उन्होंने रेशो पंजाब में खासतौर पे कम कर दिया, उसमें हमारी रिजर्वेशन है, उसको ठीक करना चाहिए। फिर ये लॉ कॉलेजेस के अंदर इंडक्शन ऑफ फैकल्टी के लिए जो एक क्राइटेरिया है उसके ऊपर थोड़ी रिकंसिडर की और उनके पर्क्स के हवाले से स्पेशली। फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के बारे में बात हुई है, वो भी बड़ी मुनासिब बात हुई है। फिर ये जो एक बार इक्विवेलेंस कोर्स की बात हुई है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आइडिया क्या था, ये 2 दफ़ा एक ही तरह का एग्ज़ाम लेना जो है और MCQs लेने जो है उसका कोई तुक नहीं बनता, वो इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। बाहर वोकेशनल कोर्स जो है उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया गया और जो उसके अंदर उनका इरादा था वो कोई नहीं किया गया। फिर ये है कि कुछ मिस इंटरप्रेट हो रहा है जजमेंट, जैसे 100 सीटों वाली बात जो है ना वो बिल्कुल लिखी हुई है, वो 5 फैकल्टी मेंबर्स के अगेंस्ट है। और अमजद साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, मैं 100% उनके साथ एग्री करता हूँ कि ये 5 जो है वो रिक्वायरमेंट 1 साल की, और 5 साल के लिए आपको उसको ज़रब नहीं देना, 25 नहीं चाहिए, 100 के लिए 5 ही रहेंगे। और आपको इनिशियली अगर आपके पास है तो पहले 2 साल पढ़ाने के लिए तो आप एफिलिएशन करने में कोई रुकावट ही नहीं है, आप चल सकते हैं आगे। फिर हमने ये बात की है कि करिकुलम के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए और इसको रिकंसिडर करके बेहतरी करने की ज़रूरत है। फिर टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए HEC को भी कोई अपना पार्ट प्ले करना है, गवर्नमेंट्स की तरफ से फंडिंग लाने की बात की जाए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वापस जाया जाए। वो जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसने जो काम करना है, जो काम HEC का है वो करे, जो पाकिस्तान बार काउंसिल का है वो करे, जो गवर्नमेंट्स ने करना है वो करे, ताकि ये अब काफ़ी अर्सा हो गया वो हम इसको आगे लेके जाएं, ये ना हो कि ये स्टेलमेट का शिकार हो जाए। और मोर इम्पोर्टेंटली वो डायरेक्टरेट जरूर डेवलप होनी चाहिए जो कंसिस्टेंटली इसको वॉच करके हर वक्त चीज़ों को बेहतर करती रहे। उसके ऊपर हमने आज बात की है, तो कल हम फर्दर चल रहे होंगे और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आज बात हुई है, कल करेंगे और किस तरह से आ रही है। और फिर ये जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ गया है उसको भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में तो बड़े कम्पिटिटिवली लोग बच्चे जाते हैं और वो तो मैं समझता हूँ मुफ्त पढ़ रहे हैं आज भी। उनकी मौज है, जैसे हम कभी मुफ्त पढ़े थे वो भी मुफ्त पढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
लेकिन जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी फिर फी बहुत बढ़ गई है, और उसकी बड़ी वजह यही है, एक तो ये फी स्ट्रक्चर में चेंजेस उन्होंने करनी पड़ गई है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा इवनिंग क्लासेस जो है उन्होंने सारी बंद कर दी हैं, और एक ही तरह का प्रोग्राम 5 साल का जरूर लाने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। इस पे हमने आज डेलिब्रेट किया, तो इंशाल्लाह शाह साहब कल फिर हम आपको 2:30 बजे मिलते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनसे आप रब्ता भी कीजिएगा कि उनको बोलने का मौका मिले, तो ताकि हम उनसे भी कुछ सीखें। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। असल में हम सब लोगों की एक ही फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए तो हम इकट्ठे काम करते रहे। लेकिन अलग-अलग बात करने की बजाय जब इज्तिमाई बात की जाती है तो कोई अकल की बात निकलती है, और हम उनको फोकस कर देते हैं। एज ए लॉयर मैं कहता हूँ हम बुलेट कर देते हैं, और वो अब जब हम ट्रम्प अप करते हैं और ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं तो हमारी फोर्स बन जाती है। थैंक यू सो मच। ठीक है शाह साहब। थैंक यू सो मच जफर इकबाल कलानूरी साहब, और थैंक यू सो मच हेड ऑफ डिपार्टमेंट लॉ कॉलेज के हमारे साथ थे बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी के अमजद हुसैन साहब, सॉरी सर, सर, राना इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। अली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। जी जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर सर। जी अमजद सर, जी सर, साहब माजरत, बहुत माजरत सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, हमारे साथ टॉपर्स लॉ कॉलेज के राना अली अकबर साहब थे हमारे साथ, डॉक्टर रिजवी साहब मैम आपदा थी, अली सुपीरियर के थे। इसके अलावा अतर हमारे साथ रिजवी साहब थे। प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल हैं सुपीरियर की। फिर हमारे साथ जो है उन्होंने ज्वाइन किया उजाला अकरम ने, जो कि ब्लैकस्टोन लॉ स्कूल से हैं। फिर हमें आयशा जवाद ने ज्वाइन किया, जो कि कनेड लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो आज ऑनलाइन थी। ये सिलसिला इंशाल्लाह कल जो है डिस्कशन का जारी रहेगा। सो फार वी आर इन द कल इंशाल्लाह हमारे साथ और बहुत से गेस्ट स्पीकर्स होंगे। डॉक्टर नियाज अहमद साहब वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो कल इंशाल्लाह बात करेंगे। प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शाजिया कुरैशी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की, वो हमारे साथ होंगी, और बहुत सी डिग्नेटरीज हमारे साथ कल इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह अली कजलबाज साहब होंगे, लम्स के वो डीन हैं, उन्होंने बनाया है लोगों को। हम कल बोर्ड लेंगे इंशाल्लाह, कल डिस्कशन करेंगे। कल हम हसान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, वो भी अहम आदमी है, उनको होना चाहिए। हम हामिद खान साहब से भी रब्ता कायम करेंगे, आजम नज़ीर तारिक साहब और मोहन साहब से भी कहेंगे, क्योंकि ये एक इशू ऐसा है जिसके ऊपर दोनों बड़े प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप ऑन बोर्ड हम लेके आए थे, क्योंकि लीगल एजुकेशन सबके लिए है, इसको हमने सियासत का शिकार नहीं होने दिया, इसलिए ये मामला चला था। और हमारे साथ यासीन जई साहब जो हैं, वो इस वक्त गवर्नर है बलूचिस्तान के, वो हमारे वहाँ के कमीशन को हेड कर रहे थे। इस तरह खिलजी आरिफ हुसैन साहब जो जुडिशल अकेडमी सिंध के हेड है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, वो भी हमारे कमीशन के चेयरमैन थे। हमारे पास डॉक्टर काजी साहब जो प्राइवेट सेक्टर में वहद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर थे। प्रोफेसर अहमद अली साहब की हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी जगहों के ऊपर वो पख्तूनख्वा वाले हमारे उसको हेड कर रहे थे। तो ये हमने सारे जो दोस्त जो हमारे साथ काम करते रहे हैं और जो सारे रेलेवेंट भी हैं और जो बड़े दिमाग हैं, उनसे हम रहनुमाई लेते हैं। तो उनसे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कल वो भी हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। कल इंशाल्लाह हम 3 बजे फिर लाइव होंगे फेसबुक इंस्टीट्यूट फॉर लीगल रिसर्च एंड एडवोकेसी के ही इस पेज से। तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। जी अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। जान साहब, बहुत शुक्रिया जान साहब।